زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ماضی کی باتوں کو بھلانا چاہیے. جیسے تو بھی پٹکتے ہیں نا کپڑے کو ویسے پٹکی جاتی ہوں میں. میں جلدی تو نہیں کر رہا. جلدی کرو کہیں دیر نہ ہو جائے. جب شادی کرنی ہے تو سہا ہو یا کوئی اور لڑکی کیا فرق پڑتا ہے. یہ میری مجبوری ہے. اچھا سنو, مجھے بہت نیند آ رہی ہے. کل صبح مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے. ہم کل بات کر لیں گے پلیز. ہاں پکا پکا. اللہ حافظ. باجی گھر پہ نہیں ہے. کہاں گئی ہیں؟ مجھ سے تو کہا تھا کہ آپ کو بتا دیں کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں. کیا مطلب تم سے کہا تھا کہ مجھے بتا دیں گے گھر پہ نہیں ہے؟ مطلب گھر پر ہے؟ مجھے نہیں پتا, مجھے جو کہا تھا وہ میں نے بتا دیا. اوکے. وصیت کے مطابق حکم سمجھ کر فوراً ہاں کر دینی چاہیے تھی. خیر کوئی بات نہیں, لے لے سوچنے کے لیے وقت جتنا چاہیے. آخر اس نے ہاں ہی کرنی ہے. اس کے علاوہ تجھ سے محبت کرنے کو یہ عمر بچہ کے رکھی تھی. میرے یار تجھی پہ مرنے کو. ہیلو ویورز, فیروز خان اور ثنا جاوید کا نیو ڈرامہ سیریل دیوانہ آ رہی ہے. تو اگر آپ لوگ اس ڈرامہ سیریل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ایک گھنٹی کا نشان لازمی دبائے. ویورز, اس ڈرامہ سیریل میں فیروز خان ایک مڈل کلاس نوجوان سادہ اور ایماندار اور خواب دیکھنے والا ہوگا. ویورز, ڈرامہ سیریل کی آغاز فیروز خان ایک عام سا لڑکا ہے جو اپنے والد کے درزی کی دکان میں کام کرتا ہے. اس کے خواب بڑے ہیں مگر وسائل کم ہیں. دوسری طرف ثنا جاوید ایک رئیس زادی ہے جو اعلیٰ تعلیم کے بعد اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہے, مگر اس کا باپ حسن علی اسے بزنس میں لانے کے خواہش مند ہے. ویورز, ثنا جاوید کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے. فیروز خان جو قریب سے گزر رہا ہوتا ہے فوراً اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اسپتال پہنچاتا ہے. یہ پہلی بار ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, مگر ثنا جاوید اسے ایک عام سا لڑکا سمجھ کر زیادہ اہمیت نہیں دیتی. ویورز, ان دونوں کی محبت کے آغاز چند دن بعد ثنا جاوید کو احساس ہوتا ہے کہ فیروز خان کی سادگی اور ایمانداری میں ایک خاص کشش ہے. وہ اپنی امیری اور غرور کے باوجود اس کی سچائی سے متاثر ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وہ فیروز سے ملنے کے بہانے تلاش کرنے لگتی ہے. ویورز, جب حسن علی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے ہیلو ویورز, کراچی کے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں آمنہ اور فراز کی پہلی ملاقات ہوئی. دونوں کا تعلق مختلف دنیاوں سے تھا. آمنہ ایک درمیانی طبقے کے گھرانے کی بیٹی تھی جہاں پر فیصلہ والدین کی مرضی سے ہوتا. وہ خواب دیکھتی ضرور تھی مگر ان خوابوں کو زبان دینے کی ہمت کبھی نہ کرتی.
दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शोरों में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज खुले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि इनके साथ मोहब्बत इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में एक खूबसूरत मंजर पर होता है जहाँ आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमना की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ दुनियावी से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती। दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शोरों में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज खुले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि इनके साथ मोहब्बत इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में एक खूबसूरत मंजर पर होता है जहाँ आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमना की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ दुनियावी से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती।
दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शुरू में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज को दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद ना आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि इनके साथ मोहब्बत इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में एक खूबसूरत मंजर पर होता है जहाँ आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमने की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ दुनियाओं से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती। दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शुरू में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज को दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद ना आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि इनके साथ मोहब्बत इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में एक खूबसूरत मंजर पर होता है जहाँ आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमने की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ दुनियाओं से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती।
دوسری طرف فراز ایک خوشحال بزنس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، مگر اپنی ماں کی بیماری نے اس کے دل کو حساس بنا دیا تھا۔ وہ اکثر اپنی کلاس کے بعد لائبریری میں وقت گزارتا۔ وہ ایک دن آمنہ سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئی، مگر جلد ہی دونوں کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ بن گیا۔ فراز کھلے دل کا تھا، وہ جذبات کو چھپاتا نہیں تھا۔ آمنہ کی خاموشی اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ آمنہ کے دل میں بھی فراز کی باتوں کی گونج رہنے لگی، مگر وہ ڈرتی تھی۔ اس کے والدین سخت مزاج تھے اور اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے ہی ایک قریبی رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ طے کرنا چاہتے تھے۔ فراز نے ایک دن صاف الفاظ میں آمنہ سے کہا، آمنہ میں جانتا ہوں تم ڈرتی ہو، لیکن اگر تم ایک بار میرا ہاتھ تھام لو تو ساری دنیا سے لڑنے کی ہمت آ جائے گی۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر والدین کے رضا کے بغیر آگے بڑھنا بھی تھا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ادھر فراز کے والدین کو بھی یہ تعلق پسند نہ آیا۔ انہیں لگتا تھا کہ آمنہ ان کے بیٹے کے معیار کی نہیں ہے۔ کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب فراز کی ماں، جو عرصے سے بیمار تھی، ایک دن آمنہ سے ملی۔ آمنہ نے نہ صرف بلکہ ان کے ساتھ محبت، عزت کا وہ سلوک کیا جو کسی نے نہ کیا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب فراز کی ماں کا دل بدل گیا۔ انہوں نے اپنی شوہر کو قائل کیا اور کہا، یہ لڑکی ہمارے بیٹے کی زندگی کو سکون دے سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر میں نے وہ خلوص دیکھا ہے جو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آخر کار دونوں گھرانے راضی ہو گئے، مگر آمنہ کے والد نے ایک شرط رکھی کہ فراز اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری خلوص سے نبھائے گا۔ ڈرامے کے اختتام میں ایک خوبصورت منظر پر ہوتا ہے جہاں آمنہ اور فراز نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں سکون اور فراز کے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں آمنہ اور فراز کی پہلی ملاقات ہوئی۔ دونوں کا تعلق مختلف دنیاوں سے تھا۔ آمنہ ایک درمیانی طبقے کے گھرانے کی بیٹی تھی، جہاں پر فیصلہ والدین کی مرضی سے ہوتا۔ وہ خواب دیکھتی ضرور تھی، مگر ان خوابوں کو زبان دینے کی ہمت کبھی نہ کرتی۔ دوسری طرف فراز ایک خوشحال بزنس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، مگر اپنی ماں کی بیماری نے اس کے دل کو حساس بنا دیا تھا۔ وہ اکثر اپنی کلاس کے بعد لائبریری میں وقت گزارتا۔ وہ ایک دن آمنہ سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئی، مگر جلد ہی دونوں کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ بن گیا۔ فراز کھلے دل کا تھا، وہ جذبات کو چھپاتا نہیں تھا۔ آمنہ کی خاموشی اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ آمنہ کے دل میں بھی فراز کی باتوں کی گونج رہنے لگی، مگر وہ ڈرتی تھی۔ اس کے والدین سخت مزاج تھے اور اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے ہی ایک قریبی رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ طے کرنا چاہتے تھے۔ فراز نے ایک دن صاف الفاظ میں آمنہ سے کہا، آمنہ میں جانتا ہوں تم ڈرتی ہو، لیکن اگر تم ایک بار میرا ہاتھ تھام لو تو ساری دنیا سے لڑنے کی ہمت آ جائے گی۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر والدین کے رضا کے بغیر آگے بڑھنا بھی تھا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ادھر فراز کے والدین کو بھی یہ تعلق پسند نہ آیا۔ انہیں لگتا تھا کہ آمنہ ان کے بیٹے کے معیار کی نہیں ہے۔ کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب فراز کی ماں، جو عرصے سے بیمار تھی، ایک دن آمنہ سے ملی۔ آمنہ نے نہ صرف بلکہ ان کے ساتھ محبت، عزت کا وہ سلوک کیا جو کسی نے نہ کیا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب فراز کی ماں کا دل بدل گیا۔ انہوں نے اپنی شوہر کو قائل کیا اور کہا، یہ لڑکی ہمارے بیٹے کی زندگی کو سکون دے سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر میں نے وہ خلوص دیکھا ہے جو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آخر کار دونوں گھرانے راضی ہو گئے، مگر آمنہ کے والد نے ایک شرط رکھی کہ فراز اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری خلوص سے نبھائے گا۔ ڈرامے کے اختتام میں ایک خوبصورت منظر پر ہوتا ہے جہاں آمنہ اور فراز نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں سکون اور فراز کے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں آمنہ اور فراز کی پہلی ملاقات ہوئی۔ دونوں کا تعلق مختلف دنیاوں سے تھا۔ آمنہ ایک درمیانی طبقے کے گھرانے کی بیٹی تھی، جہاں پر فیصلہ والدین کی مرضی سے ہوتا۔ وہ خواب دیکھتی ضرور تھی، مگر ان خوابوں کو زبان دینے کی ہمت کبھی نہ کرتی۔
दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शुरू में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज कोयले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन की रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ के साथ मोहब्बत इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में खूबसूरत मंजर पर होता है जहाँ आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमने की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ दुनियावी से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती। दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शुरू में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज कोयले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन की रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ के साथ मोहब्बत इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में खूबसूरत मंजर पर होता है जहाँ आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमने की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ दुनियावी से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती।
दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शोरों में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज कोले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि इनके साथ मोहब्बत, इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपने शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में एक खूबसूरत मंजर पर होता है जहां आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमना की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ दुनिया से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती। दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शोरों में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज कोले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि इनके साथ मोहब्बत, इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपने शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में एक खूबसूरत मंजर पर होता है जहां आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमना की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ दुनिया से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती।
दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शुरू में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज कोयले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि के साथ मोहब्बत इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में खूबसूरत मंजर पर होता है जहां आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमने की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ दुनियाओं से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती। दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शुरू में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज कोयले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि के साथ मोहब्बत इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में खूबसूरत मंजर पर होता है जहां आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमने की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ दुनियाओं से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती।
दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शोरों में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज कोले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि इनके साथ मोहब्बत, इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में एक खूबसूरत मंजर पर होता है जहां आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमना की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ दुनियावी से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की मर्ज़ी से होता। वो ख्वाब देखती ज़रूर थी, मगर इन ख्वाबों को ज़बान देने की हिम्मत कभी ना करती। दूसरी तरफ फराज एक खुशहाल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपनी माँ की बीमारी ने उसके दिल को हसास बना दिया था। वो अक्सर अपनी क्लास के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारता। वही एक दिन आमना से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। शोरों में छोटी छोटी बातें हुई, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराज कोले दिल का था, वो जज्बात को छुपाता नहीं था। आमना की खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती थी। आमना के दिल में भी फराज की बातों की गूंज रहने लगी, मगर वो डरती थी। उसके वालिदैन सख्त मिजाज थे और अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही एक करीबी रिश्तेदार के बेटे के साथ तय करना चाहते थे। फराज ने एक दिन साफ अल्फाज में आमना से कहा, आमना मैं जानता हूँ तुम डरती हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर वालिदैन के रज़ा के बगैर आगे बढ़ना भी था इसके लिए मुमकिन न था। इधर फराज के वालिदैन को भी ये ताल्लुक़ पसंद न आया। उन्हें लगता था कि आमना उनके बेटे के मायार की नहीं है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब फराज की माँ, जो अरसे से बीमार थी, एक दिन आमना से मिली। आमना ने न सिर्फ बल्कि इनके साथ मोहब्बत, इज़्ज़त का वो सलूक किया जो किसी ने ना किया था। यही लम्हा था जब फराज की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने अपनी शौहर को कायल किया और कहा, ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी को सुकून दे सकती है। इसके चेहरे पर मैंने वो खलूस देखा है जो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। आखिरकार दोनों घराने राज़ी हो गए, मगर आमना के वालिद ने एक शर्त रखी कि फराज अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी खलूस से निभाएगा। ड्रामे के इख्तिताम में एक खूबसूरत मंजर पर होता है जहां आमना और फराज निकाह के बंधन में बनते हैं। आमना की आंखों में सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी होती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक बड़े तालीमी इदारे में आमना और फराज की पहली मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ दुनियावी से था। आमना एक दरमियानी तबके के घराने की बेटी थी, जहाँ पर फैसला वालिदैन की